Okay. This call is now being recorded. Right. Okay. So today our lecture is basically on text, sound, and images. This is our today's topic. Okay, let's discuss. Okay, Hisham, I think so. We had discussion on this thing that uh, how we can store our data, like what are the different types of data. So can you tell me? Sham, if you can unmute, you can speak out. Yes. The types of data are text, sound, images, and audio. Oh, Yes. text, audio, and images. Yes. Text, sound, and images. Mira, anything else that you want to add in these types of data? No, sir. No. Is there any other data types that you know apart from text, sound, and images? कोई और data type हो सकती है? Sir, I am not sure because मैंने पढ़ा नहीं. No, obviously you all are reading and covering this first time, तो इसमें कोई मसला नहीं है. आपने तुक्का मारना है. हमजा, हमजा. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम. हमजा, आपको पता है? मैं सर अभी ज्वाइन किया है, सॉरी आप पता नहीं मुझे आपने क्या पूछे। अच्छा, चले हम आपसे नहीं पूछते. हमजा, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे पास कंप्यूटर में टोटल टाइप्स ऑफ डाटा कितना होता है, क्या क्या हो सकता है. और तो सॉरी हमारे पास कंप्यूटर में डाटा टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, लाइक ठीक है डाटा हम सर। किस किस फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं. जी So सर। we have a new student Hisham with us. He is from Peshawar. And ओके सर। Hisham, this one is Hamza. He is from Lahore. And we have another student Mira. She is from Karachi. So almost we are covering three provinces: KPK, Punjab, and Sindh. So also we will have new students from maybe Sindh. We have Sindh from Balochistan and Gilgit-Baltistan. So Hamza, we were discussing that how we can store our data. We can store our data in text, in sound and in images. इसके अलावा हमजा कुछ और हो सकता है? मेरा क्वेश्चन अभी भी वहीं पे है. तीनों बच्चों से क्वेश्चन है. Sir, videos. वेरी गुड, वेरी गुड. वीडियोस हो सकती हैं. मतलब हम डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं. We can store our text as data in sound. We can store our data in images, and also we can store our data in the form of videos, right? यस सर। Sir. Okay, okay. So let's start it. Text is converted into binary to be processed by the computer. It is obvious because you all know that, Asham, I also told you in the last lecture that computer do not understand the high level language. Hamza, यस सर। कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को समझ सकता है जो आप और मैं बात कर रहे हैं? नो सर, नहीं, बाइनरी। कंप्यूटर क्या समझता ओनली है? बाइनरी। ओनली बाइनरी। Only binary form. That means whatever the data type we have to convert all the data into binary form. Clear, Asham? Yes, sir. Okay. Then a character set is a list of all characters and symbols represented by a computer. So what is character set? What is character set? कोई guess कर ले. Character set क्या होगा? Sir, कोई like ऐसे जैसे कोड होता है जो कि like हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करे या like हमारे जैसे अल्फाबेट्स हैं उनकी जगह यूज हो. कोई एग्जांपल?
हमजा या कोई फिर एग्जांपल? स्केच फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह भी हो सकते हैं guys. फुल स्टॉप एंड एक्सक्लेमेशन भी हो सकते हैं. ओके हमजा, आपकी कोई इनपुट, व्हाट यू वांट टू से? हमजा. सर एनी सिंबल्स और एनी लाइक जो हम कीबोर्ड पे इस्तेमाल करते हैं, हाँ. इमोजीज टाइप कुछ भी ऐसा शायद हो सकता है इस तरह. अच्छा, सही सही. शाम, डू यू हैव इनपुट? Sir, maybe a list of numbers भी हो सकते हैं. लिस्ट ऑफ नंबर्स. ओके, राइट. ओके, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आप लोगों ने अपना ऑलमोस्ट 30 40 40% आपने अपने आंसर ठीक बताए हैं, तीनों बच्चों ने. द थिंग इज दैट हमने करेक्टर सेट, हमने अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए वी हैव मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर सेट्स, राइट. और हमारे पास करेक्टर सेट कितने हैं? सबसे पहले हमारे पास है आस्की कोड, दिस वन, राइट. देन वी हैव आस्की. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. So you can also say it as ASCII. And there is another type that is basically Unicode, right? सबसे पहले हम ASCII code के ऊपर आते हैं. Okay, ASCII code is a 7-bit code. अब you can say that ASCII code is a 7-bit code and it is a character set. ठीक है, और ये कितने बिट का होता है हमजा? 7. ये 7 बिट का होता है. ओके, देन वी हैव नेक्स्ट वन इज ASCII. ASCII कितने का होता है मेरा? 8 का. तो ये भी ASCII है. दिस इज आल्सो ASCII. सो हशाम, व्हाई वी से इट एज दिस इज एक्सटेंडेड ASCII? Because it has more bits than extended ASCII. Exactly, because it is having more bits, right? That's why we say it as extended IC. So this is for 7 and this is for 8. Then we have the Unicode. So Unicode is basically 16-bit and 32-bit code, right? Now you all students should have a question that why, sir, we have 3 types of character sets? Why only one? Why not only one? Hamza? Hamza? Sir, Mira? in my opinion, every symbol or every like something use their own bit or own storage to input anything. Okay, okay. Mira, you? सर ये डिफरेंट इसलिए हो सकते हैं क्योंकि डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिफरेंट चीज़ों को स्टोर करने में हेल्प करते Okay, right. Hisham? Sir, maybe it's because it's used to operate different things. Used to operate different things, right? Right. Very closer, closer. Okay, let's suppose I'm just is discussing about 7-bit. So you will come to know, okay, why there are 3 types of character set. First of all, we are discussing about 7-bit code. Okay, what does 7-bit code? 7-bit code means like 2 raised to power 7. What is the value? What will be the value? Multiply कर लें. What is 2 raised to power 7? जो 128.
128. It is 128. मेरा यही है Yes, sir. शाम. Yes, it's correct. Okay, it's correct. Okay, that means in simple ASCII we have 7-bit code and we have the value 128. Okay, so what is 128 means? The 128 means that we can represent 128 symbols in this ASCII code. How? How we can represent? Let's suppose we have different values. For example, A, B, C, and D. And the ASCII code for A is 65, B is 66, C is 67, D is equal to 68. So Z की ASCII code क्या होगी? कैपिटल Z की. कौन सा बच्चा बताएगा? हाँ? If starting is 65, so how many number we do have? हमारे पास ABC में कितने कैरेक्टर सेट्स हैं? 25, 26. मेरा ABC में कितने आते हैं? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. हमजा Sir, कितने हो गए? 26. 26. मेरा 26 है. ऐसा ही है ना शाम? yes, sir. Sir, तो फिर Z 90 हुआ. C is 90. Very good. If A is 65, so plus 25 is basically 90. That means the ASCII value of Z is basically 90. Sir, 91. जी 91. 90 या 91? 91. क्योंकि A 65 में चला गया ना तो पीछे 25 रह गया. So 65 plus 25 करना है हमें. A to Z नहीं था, मतलब A ये निकाल देंगे. A के निकालने के बाद 65 तो हो गया ना, एक तो हो गया ये. तो पीछे कितने रह गए? 25. जी सर. तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास Z की ASCII क्या बनेगी? 90. 90 बनेगी. शाम. Yes, sir. Okay, so that means that for every character in our language we do have an alternate number for that in these number of codes. ठीक है. अच्छा अब ये बताएं कि अगर 26 मैंने कैरेक्टर सेट दे दिए ABC को तो स्मॉल लेटर भी तो हैं, उनको भी देना पड़ेगा. बिकॉज कंप्यूटर के लिए कैपिटल A is different and small a is different. Okay, so जो small letter start होते हैं they start from 97. अब कहाँ तक जाएंगे? शाम. शाम कितने हो गए? Sir, small Z का ASCII 128 होगा. 128. 8. Okay, so small 128. 97 plus 25 करना है ना आपने, because Sir, total characters. हाँ 122. Yes sir. शाम 122, right? शाम ऐसे ही होगा ना. If A is 97 small, so इसमें 25 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे ये? 122.
122. ओके, सो हमने तो ये कहा था कि हम जितनी भी लैंग्वेजेस हैं पूरी दुनिया की, उनके जितने भी करेक्टर्स हैं उन सबको हम एक एक नंबर देंगे। हमजा, आपके पास आस्की कोड में टोटल कितनी ऑप्शंस हैं? 128. 128. डू यू थिंक कि पूरी दुनिया की सारी लैंग्वेजेस को आप एक एक नंबर दे देंगे मेरा? नो सर। नहीं ना हिशाम, कैन वी? No, sir. वी कैन नॉट, बिकॉज हमने 26 तो कैपिटल ABC को दे दिए एंड 26 हमने दे दिए स्मॉल a to z. दैट मीन्स वी आर डन विथ 52. अब रिमेनिंग पीछे रह गए थोड़े से। अब पश्तो की भी वर्ड्स हैं, आप गूगल में जाके देखें तो गूगल में काफी सारी लैंग्वेजेस हैं। कैमरा ऑन। अच्छा, पश्तो के अपने वर्ड्स हैं, इंग्लिश के अपने वर्ड्स हैं, उर्दू के अपने वर्ड्स हैं, फारसी के अपने वर्ड्स हैं, फ्रेंच के अपने वर्ड्स हैं, चाइनीज के अपने वर्ड्स हैं। तो कितनी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं जिनको गूगल हैंडल करता है। अगर हम हर लैंग्वेज के ईच सिंबल को एक एक कैरेक्टर कोड देने की कोशिश करें तो क्या आस्की कोड के अंदर दे सकते हैं हम? नो सर। नहीं दे सकते। हमजा, No, sir. नहीं दे सकते ना। सो हमें फिर क्या चाहिए, हम क्या ज्यादा करें तो हम सारी लैंग्वेजेस को हैंडल कर लेंगे? शाम, सर आपकी आवाज नहीं आई, रिपीट करें प्लीज। okay, I'm saying that if we want to give each and every language of the world, and for the each symbol if we are allocating a single digit, each symbol of every language, so हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा कि हम हर लैंग्वेज को एक एक डिजिट दे पाएंगे? सर हमें 128 को हमें नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो you will have a question, Hamza, in your paper, that if we do have already 7-bit code, so why we are using extended ASCII? मेरा कि जब आपके पास ASCII, जब आपके पास ASCII है तो आपको एक्सटेंडेड ASCII की क्या जरूरत पड़ी? तो हमजा क्या आंसर बनेगा इसका? सर हमें ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी है उसके लिए, मतलब ज़्यादा लैंग्वेजेस, उसके लिए हमें आस्की को एक्सटेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिकॉज वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और हमें हर लैंग्वेज को मैनेज करने के लिए, बिकॉज कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो हर लैंग्वेज को मैनेज करने के लिए हमें इस आस्की की जरूरत पड़ी। और यहाँ पे आस्की साहब खत्म हो गए, क्यों? तो इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सिंबल्स हैं। Okay, so here we have two questions. Why we are needing extended ASCII? First one. Second question is that if we have the already ASCII, then why we are extending it to extended ASCII? So जब हम ASCII कोड extended ASCII पे गए तो कितना सारा फर्क पड़ गया? If 2 raised to power 7 is 128, so 2 raised to power 8 कितना हो जाएगा? बच्चों 256. Yes, sir. 256. Sham, how much? 256। 256. Okay, हमें कितना गैप मिल गया? We were having 128, like we can manage 128 symbols of the languages in 2 raised to power 7, and now we do have the extended ASCII that can handle
256 सिंबल्स। सो मेरा क्या 256 से काम चल जाएगा? नो सर, क्यों? विद डिसाइड लैंग्वेजेस हैं वो हमारी कितने दुनिया सारे में exactly, very true, very true. We have like hundreds of languages and each language is having different symbols. और जितनी भी दुनिया में लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज ये चाहती है कि हमारा गूगल के ऊपर हमें ब्राउजर मिले। लाइक अगर आप गूगल पे जाएंगे तो यू कैन सिलेक्ट योर लैंग्वेज बाय योरसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि कुछ टाइम के लिए एक्सटेंडेड आस्की ने काम चलाया होगा शाम, उसके बाद एक्सटेंडेड आस्की भी लिमिटेड हो गया। ऐसा ही है। सर मेरा इंटरनेट थोड़ी प्रॉब्लम्स कर रहा है, मैं रिकनेक्ट करके आता हूँ। ओके, ज्वाइन कर लें। ओके, मेरा Yes, 8 से sir. ऊपर हम किधर जा सकते हैं? अगर हम ये कर लें 2⁻16, तो कितनी लिमिट मिल जाएगी हमें? हमजा 65,536। कितने? 65,536। 536। मेरा अब काम चल जाएगा? शायद। आज शायद, मतलब यू आर नॉट श्योर स्टिल, राइट? Yes. सो दैट्स व्हाई उन्होंने यूनिकोड पहले स्टार्ट किया था कि चलो हम थोड़ी सी एक्सटेंशन, थोड़ी तो नहीं, डबल एक्सटेंशन देते हैं इसको। लाइक देखें कितना जंप लिया उन्होंने। 256 कैरेक्टर को मैनेज करने के लिए 2⁸8 and then directly 2⁻16। सो 2⁻16 पे जब गए तो हमें क्या मिला? 65,536। अच्छा, कुछ टाइम इसके साथ भी काम चल गया, लेकिन आफ्टर ऑल इसकी भी लिमिट है। बिकॉज पहले पश्तो, सिंधी, पंजाबी, ये वाली लैंग्वेजेस इस मॉडल के ऊपर नहीं थी गूगल के ऊपर। लेकिन अब ऑलमोस्ट जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, अब पाकिस्तान में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? मेरा, कैन यू स्पीक सिंधी? सर मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। अच्छा, आप उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन सिंधी लैंग्वेज तो है ना? बलोची भी? पाकिस्तान में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, 25 प्लस शायद। 50+ लैंग्वेजेस होंगी। तो दैट मीन्स 50 लैंग्वेजेस के अंदर कुछ अगर डिजिट हों, लेट्स सपोज 20-25 सिंबल्स हों, तो 50 को 25 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, आप इंडिया का भी कर लें, मतलब 10 कंट्रीज में जाएंगे तो आपका ये वाला जो कैरेक्टर सेट है ये भी फेल हो जाएगा, है ना? मतलब यस सर। ये भी लिमिटेड हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं, हम 16 नहीं रखते, हम क्या करते हैं, इसको भी डबल कर देते हैं। ये ले, कितना कर लिया? 2⁻32। अब कितने बने? अब हमजा बताएगा। सर बहुत ज्यादा है कितने? सर, डिजिट ऐसे बता देता हूँ, वैसे काउंटिंग की समझ नहीं आ रही। बताएं। 4 2 4294 4294 96 96 72 72 96। 96। कितने हो गए? ओके, 4 अरब and 29 crore 49 lakhs 67,296। मेरा अब काम चल जाएगा? सर अब तो चल जाएगा। अब चल जाएगा, अब चल जाएगा, बिकॉज अब ये बहुत बड़ा कैरेक्टर सेट हमने बना लिया है। तो अब दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उनकी जितनी भी सिंबल्स हैं, वो हम किस कैरेक्टर सेट के अंदर, किस कोड के अंदर मैनेज कर सकते हैं हमजा? यूनिकोड। यूनिकोड के अंदर। यूनिकोड में 16 में या 32 में? 32। 32 में। तो अब बच्चों, आई थिंक सो आप लोगों को, अच्छा आपने अब ये वाली याद नहीं रखने, ये जो है ना, ये वाली चीज, ये कोई अल्लाह का बंदा याद ना करने बैठ जाए।
ये वाला। दिस इज जस्ट फॉर द कंसेप्ट ताकि आपको समझ आ सके और आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है। ठीक है, सेम इसी तरह इसकी भी आपको याद करने, इन दो को याद कर लें बिकॉज ये आपके यूज होने हैं, 2⁷ एंड 2⁸ आस्की कोड जो है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? हमजा? Yes, sir. Yes, sir. ओके राइट। सो चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ रीडिंग। वी हैव एन आस्की कोड which is having 7-bit code. Okay, it only handles English language because it has limited resources. Then uses less bit per character because हैं ही थोड़े से, तो फिर थोड़ा सा ही डाटा यूज होगा। Then if we talk about the ASCII, so ASCII is having 8-bit code. So now you can see it also handle English language with some non-English symbols. सब non-English symbol कौन से बच्चों? Do you have keyboard in Yes, front of sir. you? Okay, if you can see Sham, so you have the plus sign, you have multiply, हमजा आपके पास @ होगा, आपके पास हैश का साइन होगा, you are Yes, sir. having steric, you have the and sign, you have bracket start, you have bracket close, you have dot, you have comma. So all these symbols can be managed in extended ASCII. ठीक है, बिकॉज ये तो बेचारा कर ही 28 सकता था ना, 128, तो इसमें तो सिर्फ इंग्लिश लाइक हैंडल कर सकता है। What this ASCII can do, it can handle 256 symbols. So that means कि ये इसकी पावर ज्यादा है और इसमें नॉन इंग्लिश सिंबल्स भी यूज होंगे। और इसमें एक चीज और, रिलेटिवली लेस बिट्स पर कैरेक्टर, इसमें भी लेस है और लेकिन इसमें और ज्यादा कम है। अगर हम यूनिकोड की तरफ आए, so यूनिकोड इज 16-bit code. It is also having 32-bit code. So अगर इसमें देखें हम 4 अरब तक गए, so that means it can handle multiple languages and symbol. Yes, sir. And then it can uses more bit per characters. So that means कि अब आपको ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है. You already have this logic that we have character set. So character set are having 3 types. First one is ASCII, second one is extended ASCII, and third one is our Unicode. Right? ASCII is having 7-bit code, extended ASCII is having 8-bit code, and Unicode is having 16 and 32-bit code. जो Unicode है, it can handle all languages. So why we call it as Unicode? Any guess? Because it's a universal code type of Yeah, code. that's great. That's great. So Unicode means like this is universal code. मेरा why we call it as universal code? क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेस या फिर सिंबल्स के लिए वर्क कर सकता है। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया की सारी लैंग्वेजेस के सिंबल्स के लिए वर्क कर सकता है। Like it can handle all the symbols of all the languages of the world. तो हमारे पास जो सबसे पावरफुल है that is Unicode. ठीक है, अब इसमें हम इस वीकेंड पे लाइक हमारे सैटरडे वाले दिन मैं पास्ट पेपर कराऊंगा, तो उसमें क्वेश्चंस होंगे। सो इफ यू डू हैव दिस लॉजिक, ऑल दीज लॉजिक जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं, तो बड़ी आसानी से आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने इन लॉजिक को भूलना नहीं है और इन लॉजिक की बेस पे ही इस टॉपिक को हमने आगे तैयार करना है। ओके, अब आ जाए हमारे पास नेक्स्ट व्हाट वी डू हैव इज थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट हो रहा है इसमें।
We have 20 minutes, 5 minutes basically, but we can do this now. Okay. A sound wave is sampled for sound to be converted to binary ADC. Hisham, if I'm speaking, so my sound is basically in the form of wave, right? Is it so? Yes. Okay. So before entering Mira to this mic, the mic I do have in which I am speaking, my sound was in the form of Hamza, Sound wave. sound wave, in the form of wave. Okay, जैसे ही मेरा sound इस mic के अंदर गया, इसमें convert हो गया मेरा पानी में या हवा में। सर आपका माइक ग्लिच कर रहा है। Fix कर रहा है, बाकी बदल जी। ठीक बात आ रही है, सर नहीं, सही आवाज नहीं आ रही। बस ठीक नहीं आ रही। नहीं सर, वो दूर दूर आवाज आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है आपकी आवाज? दोबारा बोलिएगा। Now it's better, थोड़ी सी better है। हाँ जी, अब ठीक है आवाज? नहीं आ रही आवाज, आपने दूर किया माइक। ठीक है। आई थिंक माइक में प्रॉब्लम है आपके। माइक में इशू है, बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है। जी Yes, आपकी आवाज कट रही है। ओके वेट, आप साउंड ठीक है? थोड़ा ऊंचा बोलें। आप ठीक है साउंड? नहीं अभी भी नहीं। ओके, आप साउंड ठीक है? सर आपकी आवाज क्लियर है, लेकिन थोड़े से ऊंचे बोले आप। जी, अब ठीक है आवाज? यस। बाकी बच्चों को ठीक आ रही है आवाज? शाम? जी सर बेहतर है। यस Okay. ठीक है। ओके, सो आई थिंक सो हमने इस माइक की आज बात की है तो ये माइंड कर गया कि मेरी एग्जांपल क्यों दे रहे हैं सर, तो हम इसको फिर चेंज कर लेंगे। कल की क्लास के लिए हम इसको बाय बाय कर देंगे। ओके, तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था? मैं आपसे बात ये कर रहा था कि हशाम, बिफोर एंटरिंग साउंड इनटू माय दिस माइक, माय साउंड इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। मेरा जब हमने इसको साउंड में कन्वर्ट कर लिया तो अब मेरा साउंड किस फॉर्म में आ गया? मेरा सर कोड में आ गया। किस में? यूनिकोड में। यूनिकोड में। हमजा? बाइनरी सर। बाइनरी। हशाम? बाइनरी। Binary. Okay, so that's why you can see convert binary using an ADC. कोई guess कर सकता है what is ADC? कोई बच्चा? 3 इंटेलिजेंट बच्चे मेरे पास हैं। सर Anybody can- अब अपनी डिवाइस को सही करें। अब आ रही है आवाज? स्लो आ रही है। अब ठीक है? सर आपकी आवाज एको हो रही है। एको हो रही है। सॉरी फॉर टुडे, टुमारो इसको हम बिल्कुल ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, व्हाट वी कैन डू हियर। सर आप म्यूट हो गए हैं। ये प्रॉब्लम आ रहा है साउंड के अंदर। बच्चों कुछ तो आवाज आ रही है, कल से इंशाल्लाह इसको ठीक कर लेंगे।
अभी क्लास तो एंड कर लें, बेहतर है कुछ आवाज? Yes, sir. ओके बच्चों, इसको कोई गैस कर सकता है? व्हाट इज एडीसी? एनीबॉडी कैन गैस? सर मेरे ख्याल से मैंने पहले सुना था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वाओ इस तरह का कुछ था। वाओ, मेरा है इधर? सर ये बाइनरी को ऑडियो में कन्वर्ट कर। बाइनरी को ऑडियो में कन्वर्ट करता है। ओके ओके, सो दिस एडीसी इज बेसिकली, आपके आंसर ठीक हैं, बाइनरी को ऑडियो में कन्वर्ट करता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि वी हैव टू टाइप्स, द फर्स्ट टाइप इज बेसिकली एनालॉग and second type is digital. Analog and digital, there are two types of you can say data types or data forms. So जब मेरा माइक में आवाज आ रही थी यहाँ से, सो किस फॉर्म में थी? एनालॉग की फॉर्म में। जैसे ही माइक के अंदर आवाज गई तो किस में कन्वर्ट हो गई हमजा? बाइनरी। बाइनरी में। सो बाइनरी का दूसरा नाम हम क्या रख सकते हैं शाम? कैन वी से डिजिटल? Yes, sir. Yes sir, we can say. So that means that this is basically known as analog to digital converter, because my sound was in the form of wave and now it is converted into digital data. So ADC. Okay, let's move on. We have the sampling. Sampling is used by determining the amplitude of the sound after set interval. This gives an approximate representation of the sound wave. Okay, we have to do this. For example, this is a graph and this is my sound. हमजा, ऐसे होता है ना? यस सर। जब हम गाना सुनते हैं तो हमारे पास इस फॉर्म में होता है ना, वेव आ रही होती है शाम, like this. Yes, sir. Okay, if we want to measure this wave, so what I can do, I can make the stops or the points on my graph. Like what? Okay, see, if this is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and this is 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, if I want to measure this sound, what I can do? मेरा है इधर? Sir, measure the decibels. measure the Decibels. decibels. Yes, very nice, very nice. हमजा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट्स बना लेंगे, ठीक है, ऐसे। इस 3 के ऊपर हमारे पास ये पॉइंट बनेगा, 4 के ऊपर हमारे पास ये पॉइंट बनेगा, 5 के ऊपर हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पे, 6 के ऊपर हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पे, 7 पे पॉइंट बनेगा यहाँ पे, 8 पे पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ओके, इफ वी वांट टू मेजर दिस साउंड, व्हाट वी कैन डू, ये मेरा पॉइंट हमजा कहाँ पे आ रहा है? 1.5 पे। यस ये सर। पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? 2.5। 2.5 पे। ये कहाँ पे आ रहा है शाम? 4 पे। This is something like 3.5. This is something like 8, 7 basically. This is something like 5. और ये कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। Okay. So here the question comes that what is sampling rate?
ओके, आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं एक साउंड को 1 सेकंड में एक दफ़ा मैयर करूं तो 10 सेकंड में कितनी दफ़ा मैयर करूंगा उनको? शाम 10 दफा, 10 दफा, 10 दफ़ा। हमजा, अगर मैं 10 सेकंड में 1 सेकंड में अगर मैं 2 दफ़ा मैयर करूं तो कितनी दफ़ा मैयर करूंगा? सर अगर आप एक दफा में एक सेकंड में 2 दफा मैयर करेंगे हाँ, ये देखे ना, तो आप 10 1 सेकंड सेकंड में, में कितनी दफा मैयर करेंगे? यस, 1 सेकंड में अगर मैं एक दफ़ा करता हूँ तो 10 सेकंड में कितनी दफ़ा करूंगा? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स 2 दफा में 20 दफा। और अगर 1 सेकंड में 2 टाइम्स अगर मैं चेक करता हूँ तो 10 सेकंड्स में कितनी दफ़ा कर लूंगा? 20। 20। ओके, अगर मैं 1 सेकंड में, टाइम वही रहेगा 1 सेकंड, ओके, अगर 1 सेकंड में मैं 3 टाइम्स चेक करता हूँ तो 10 सेकंड्स में कितनी दफ़ा कर लूंगा? 30। ओके, अगर मैं 1 सेकंड में 5 टाइम्स चेक करता हूँ 1 सेकंड में तो 10 सेकंड्स में कितनी दफ़ा मैं चेक कर सकता हूँ? 50। मेरा 50, राइट? कितना? कितने टाइम्स मेरा? 50, 50। ओके, अब आप ये बताएं कि अगर एक मरीज बीमार है, राइट, और उसको अगर डॉक्टर दिन में 10 दफ़ा देखेगा तो मरीज खुश होगा, या उसे 20 दफ़ा देखेगा तो मरीज खुश होगा, 30 दफ़ा देखेगा या 50 टाइम्स देखेगा तो खुश होगा? हमजा, सर 50। 50 टाइम्स देखेगा तो खुश होगा। दैट मीन्स कि अगर हम साउंड को 1 सेकंड में एक दफ़ा देख मैयर करेंगे तो हमारी सैम्पलिंग रेट डाउन होगी, ठीक है? जो साउंड हम मैयर करेंगे उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। शाम, आर यू हियर? यस। ओके, सो अगर मैं एक साउंड को 1 सेकंड के अंदर 2 टाइम्स चेक करता हूं तो दैट मीन्स आई एम इम्प्रूविंग माई साउंड क्वालिटी। इफ आई एम चेकिंग अ साउंड 1 सेकेंड में 3 दफ़ा उसको मैं चेक कर रहा हूँ तो दैट मीन्स आई एम इम्प्रूविंग माई एक्यूरेसी मोर। और यस। अगर मैं 1 सेकंड में अगर एक साउंड को 5 टाइम्स चेक करता हूँ तो दैट मीन्स आई एम इम्प्रूविंग माई फ्रीक्वेंसी एंड आल्सो आई एम इम्प्रूविंग माई सैम्पलिंग रेट। हमजा, समझ आया? हमजा, सैम्पलिंग रेट क्या होता है? यस सर। सैम्पलिंग रेट इज बच्चों के 1 सेकंड के अंदर हाउ मेनी टाइम्स यू आर मयरिंग द साउंड, दिस इज बेसिकली सैम्पलिंग रेट। बात क्लियर हुई मेरा? यस सर। मेरा मेरा है? शाम, आपको क्लियर हो गया? यस सर। और मेरा आपको? yes sir, ओके, तो मेरा मुझे बताएंगी कि सैम्पलिंग रेट क्या होता है? मेरा अनम्यूट करें। सर मेरा नेट काफी शुक्र। अच्छा, हिशाम, इफ यू कैन रिवाइज व्हाट इज सैम्पलिंग रेट? सर जितनी दफा आप ऑडियो को चेक करते हैं उतना ज्यादा आपका अच्छा वो सैम्पलिंग रेट होता है। सैम्पलिंग रेट होता है और उतना साउंड क्वालिटी अच्छी होगी, राइट? यस सर। Okay, so I am checking one times in 1 second. So if I check it from this once again, so that means I am checking it 2 times in a second. So more sampling rate
the better the quality of the sound. And low sampling rate, that means we will have a low sampling rate and also the low quality. बात क्लियर होगी? यस सर। ओके, अब मैं टेक्निकली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोनों बच्चों से, तीनों से, दूसरी मेरा तो है नहीं, दोनों बच्चों से मैं टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमजा लेस सैम्पलिंग रेट में मेमोरी ज़्यादा होगी या ज़्यादा सैम्पलिंग रेट में मेमोरी ज़्यादा होगी? सर ज़्यादा सैम्पलिंग रेट में, बिकॉज आप एक सेकंड में अगर 5 टाइम्स मेजर कर रहे हैं तो यू नीड 5 बिट्स इन ईच सेकंड। यस सर। और अगर आप एक ही दफ़ा ही चेक कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपको एक ही बिट के अंदर आपका काम हो जाएगा। यस सर। इसीलिए इशाम, हैव यू एवर सीन ऑन दी एनी वेबसाइट कि वहाँ पे लिखे होते हैं इफ़ यू वांट टू डाउनलोड योर साउंड इन 60 हर्ट्ज, इन 100 हर्ट्ज, कभी मेजर किया, कभी एनकाउंटर हुआ? यस। ओके, उसके बाद हमारे पास होता है कि आप 500 हर्ट्ज पे ले लें, आप 1000 हर्ट्ज के ऊपर ले लें। सो जितना अच्छा आपका माइक होगा या जो साउंड सिस्टम होता है, जैसे आप कंसर्ट पे जाते हैं जहाँ पे अच्छे सिंगर सिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे बेसिकली हाई क्वालिटी के कन्वर्टर्स लगे होते हैं जो एक सेकंड में ज़्यादा सैंपल रेट लेते हैं थ्रू माइक, उसको मशीन में ले जाते हैं और उनको कन्वर्ट करके स्पीकर के ऊपर ले जाते हैं। अब जितना अच्छा सैम्पलिंग रेट के ऊपर आपने साउंड को मेजर किया होगा उतनी अच्छी साउंड निकलेगी। तो जो साउंड आपका स्टूडियो में रिकॉर्ड होता है वो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिकॉर्ड होता है और उसके सैम्पलिंग रेट्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप ऑफिशियल गाना यूट्यूब से सुने या उसको डाउनलोड करके सुने, यू विल फील द डिफरेंस इन द साउंड। कभी फील किया आपने? साउंड के अंदर भी क्वालिटी होती है। यस। हाँ, सो दिस इज बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग रेट। आई थिंक सो, मेरे ख्याल में ये आपका क्लियर हो गया सैम्पलिंग रेट। लास्ट we have one thing, this is basically sampling resolution. So this is again a concept that I'm not going to start it today because it will take like 10 to 15 minutes. So we have like few minutes. If you do have any question, you may ask, Hamza. नो सर, मेरा तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, यू मे लीव अगर आपको समझ आ गई है तो। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Sham, if you do have any question? नो सर। Previous lecture, have you revised any lecture? सर मैंने बाइनरी और हेक्साडेसिमल में थोड़े लेक्चर